Uh, the topic I've selected today is very basic, and my advance apologies and those who have attended this topic or heard me talking about this or seen my slides. But I thought we must do it again because there are many new students. Even here at FIP, there are students who have not attended this topic. So we will start from the very beginning. तो अभी तक कितने पार्टिसिपेंट हैं? 10 हैं. इनको तो मैंने दे दिए सबको. राइट, ठीक है. अभी जो आएंगे बीच में मुझे फिर 11वां कौन आ गया? डॉक्टर सलमान आप लगा बैठे हो काजर मेडिकल कॉलेज में. अच्छा, और वजिया, I've given you the rights. Okay, now no more rights. So the SLO is again so that you can describe various procedures, steps, concepts of method validation. Before starting this talk, just want to say two things as a preamble. One thing is that why we teach this subject. What is the importance of this subject in chemical pathology or in our profession? There are two aspects. One aspect is that we should know this thing because it's a very important part of any analytical system, and especially when we are talking of analytical chemistry, that means the higher system like HPLC, GCMS, where you have to develop the methods yourself and then validate it. So, and in that perspective, this is an important research publication also. We just forget it, or it may be that we do not know it. You can develop a method and you can publish it, and that will go in an international paper of International Journal of Laboratory Medicine. Method development and method validation is a very important procedure because you write everything in that. Many ml, I've taken this reagent and this and that, and this is the procedure I followed, because then people follow you. People will follow. That will be a very useful addition in the scientific publications. Number two, now coming in to our students, this is a very important part of the examination. Rather, I always call it is the most difficult part of the examination. Usually it is done last day of the last session of the first day one, after lunch. So 2 to 5. This candidate is also already exhausted, and then you have to do it. But it is like this, and it will be continue like this. I don't know for how long. But what we are going to do is add some conceptual thing in it, because you are scientists, you are supervisors, you will be inshallah supervising manager of the lab, not managers, supervisors, or what they call leaders in the lab. So you should know the whole picture. What I always stress is that what in the examination we will give as a practical or as a hands-on training, hands-on experiment will be small part of the picture. It's only small part, but we may ask you the whole picture, where it fits in. If you have done this linearity, what does this mean? What is its requirement in the method validation? What other things you will do for method validation? What is LOD? Well, what is LOQ? So the thing will not stop at what you have just done in your experiment. So experiment may be a very small part of it. And inshallah by 5, after 1 or 2 exam, when talks will start on this, you will get stations made out of the whole method validation part. So you will have data, you may have data, and you have to interpret it. So the junior trainees
I'm seeking their attention by saying these things, that they may get a talk station made out of this method validation. Okay. For my MPhil students, they are also very dear to me. These are the courses which probably will be just touch in your MPhil syllabus, but when we take up the PhD courses, they are going to be part of, because 18 credit hours you have to do for your PhD coursework, and then this will be an essential part, and in much detail than the CPS students. So these were the two things which I wanted to tell you, that this is an important professional competence, and secondly, it is an important part of the examination. And how it is important, I just told you. Another thing I want to tell you is that how this method validation and method evaluation, etc., is dealt by the professional people around the world. So in Word, there are two types of people who handle these situations. One are called, I will not tell you what they are called, because you will know during the lecture. Those are not related to the medical profession. They are industrial people. They do a lot of method validation. For example, pharmacists, industrial quality assurance people. So they deal with this, and there is some variation in the terminology also. The most important guidelines for medical diagnostic lab is provided by the Mr. Westgard. Again, Westgard, which I introduced you in quality management lectures. James Westgard is again a pioneer in method validation as far as medical laboratories are concerned. And he also feels very disturbed when he is talking about other people not in medical profession. So Westgard, I told you in the last lecture, you must visit www.westgard.com and you learn this method validation. The initial workshop which I designed and which I conducted in 3 cities in 2012, that was purely based on Westgard website. I purchased that website, and then I developed that workshop and conducted it at 3 places. And again, I followed that, mainly the principles described by Westgard. So task 1 today is, can you define meteorology? Meteorology, what is meteorology? You can write on the chat box. Meteorology. It is something to do with the weather. Yes? Weather से deal करते हैं ना? नहीं? Measurement. Very good. Very good. चलो एक आंसर आया. चलो ये मैं उतनी देर रिकॉर्डिंग राइट किसी को दे दूँ. तो ये ज़्यादा वाले आए. Traceability. एक ही हुआ. कराची वाले जरा सूरज देर से निकलता है ना वहाँ. Okay, meteorology is the science of meteorology. क्या आ रहा भाई? आपने माइक बंद करें जरा. हाँ सब नहीं अब ठीक है. Meteorology is science of measurement. ठीक है? It is not meteorology. Meteorology is science of weather, etc., atmosphere. But this is science of measurement. And when I was referring to those people who are not involved in medical laboratories, these meteorologists, any person who is involved in meteorology is called meteorologist. So this is what exactly they do. What is meteorology and what are meteorologists? I will refer you to the some very big organization which exist even in Pakistan, and you must be knowing at least their names.
One is the organization which deals with the quality assurance of food and quality assurance of some certain things. There's an institute probably is in Lahore, and then another institute which is called National Institute of Calibration. You know, there is a National Institute of Calibration, and a few months ago we invited a meteorologist who was a PhD in the subject, and he delivered a lecture which we couldn't really understand what he's talking about. But he was very much, he spent all his life in calibration. So anybody who wants to get his instrument calibrated, or if you want to run a calibrated lab, you have to get yourself calibrated from National Institute of Calibration. So those are the people who are called meteorologists. So my next meteorologist provides access to knowledge through measurement of observations of phenomenon. So why it is required? What is the requirement of meteorology and meteorologists? Because they protect people. For example, if somebody goes and says, I went to this shop and I asked to give me 4 liters of milk, and he gave me 3.5 liters of milk instead of 4. So what is the problem? The problem is in the measurement. The liter, there may be a problem in the liter. It is not measuring exactly 1 liter. So how to protect that thing? Then the shopkeeper will produce a certificate that I have got my liter certified from the National Institute of Calibration. This is called metrology. आप में से अक्सर माशाल्लाह आप लोग बाजार जाते होंगे जरूर, आई एम श्योर, वहाँ उसको कहते हैं कि 2 मीटर मुझे ये कपड़ा दे दो, तो वो जो मीटर जिसे मेजर करता है वो मीटर क्या है, वो कहाँ से आया, ठीक है, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ वो मीटर एक प्लैटिनम की रॉड है जो दुनिया में कहीं पे पड़ी है खास टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर. दैट इज द स्टैंडर्ड मीटर, दैट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड मीटर, एंड एवरी मीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट. So ये calibration है. This is called. So similarly in laboratory also we have reference material. I will just talk about this thing in a few minutes. Then protects environments, management of transactions, management of essential factors between customer and contractors, suppliers, vendors. These are all related to marketing, etc. But I'm just telling you this thing to emphasize that this meteorology is a very large field. It has got a very large sphere, and we are just part of small or tiny part of this large sphere. Competitive needs in business through quality. Okay. Now, what are the 4 pillars of meteorology? Just write down 4 pillars of meteorology. Those who have gone through this lecture, they can also participate, so that I know that how much they have retained. What are the 4 pillars of meteorology? जी इधर से शुरू करते हैं. शाक, लेंथ, अच्छा गुड. कैलिब्रेशन उधर से है, कैलिब्रेशन वेरी गुड. ट्रेसेबिलिटी वेरी गुड, उधर से ट्रेसेबिलिटी. कैलिब्रेशन, ट्रेसेबिलिटी, मेथड वैलिडेशन, QC गुड. MSI very good. So these are the 4 pillars of meteorology. और ये दुनिया में यही 4 pillars हैं: calibration, traceability, method validation, and quality management. We will discuss all these today, but calibration means you have to get yourself everything which you measure, anything which you measure, for example, the pipette, the analytical balance, the larger your micro lab, your auto analyzer, everything has to be calibrated. It has to be certified from a calibration. Okay? Calibration lab. Traceability is generally related to the materials which you use. For example, if you say that I will use this standard, so you have to write that what is its traceability. Yesterday why our presentations went so well, because our trainers also mentioned that we will use standard traceable to the NIST.
National Institute of Science and Technology of the United States. Okay, so you have to, whenever you report something, you write an article. A chemical pathologist or a laboratory medical specialist writing an article, giving a publication, must emphasize on these things. That what was the traceability of my standards, what quality management tools I used for my uh, research. Okay, method validation we will talk, and quality management we have already talked about. What is calibration? No difference between ये बात आज अच्छी तरह याद, ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर के नौज़ायदा बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर है, तो याद रखिए कि कैलिब्रेटर एंड स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दे आर सेम. बाज लोग कहते हैं नहीं फलाना है तो एक से ज्यादा यूज कर लें तो कैलिब्रेटर होता है, एक हो तो स्टैंडर्ड होता है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है. You can use calibrator, you can use standard, same term. Calibration of instruments I just talked about. They are very important, and if you want to go for any ISO certification or you want to go for CAP, you have to get your instruments calibrated. Traceability, I just told you, reference standard material, which is the RSM, the final standard, primary standard, then secondary standards, and field standards, which we use. Inshallah, I hope sometime we will talk in detail about traceability, because sometimes you get questions about these traceability. A few years ago, there was a question, full-fledged SAQ on traceability. Okay, Ji. Now first question, and this is again a repeated one. The most common errors in the laboratory are due to pre-analytic. D, yes, pre-analytical. Good. Good, Saeed, very good. CMA Lahore bhi. Majda hongi mere khayal. Okay. Pre-analytical errors are the most common errors, and 60% error are pre-analytical about, and only 15% are analytical, and 25% are post. This was a study by Plebani and Carrero, and I told you that they have there are multiple publications from these authors on the subject of laboratory error. Then my next question is, only 15% are analytical, and we talk a lot about analytical errors. Rather, we will discuss why do we discuss method validation and quality management to control the analytical errors. Ultimate purpose is to control the analytical errors, but they are only 15%. Are they important? This 15%, are they important, or we should have ignored it and just go ahead? Huh? Why they are important? Sumbal, जरा ऊंचा बताइए. हाँ, they are important. Yes. अगर आवाज नहीं है तो लिखो आप, क्या वजह है? CMA Lahore. Why they are important? Why they are important? Only 15%. Because as just told by Dr. Sumbal, that they are important because they are subtle change. Yes, they are very usually they are such small changes that you can very easily, the clinician who is dealing with the reports, your clients will accept it. If the glucose had to be 100 milligram and you report 110 milligram, you will say, okay, patient has got 110, because the error is so small that it cannot be detected. Usually, pre-analytical errors are very gross. For example, instead of 100, you report 400 errors because there was a sample change. The sample from diabetic is changed with the non-diabetic sample, and the clinician will not believe it. He will say, no, he's not a diabetic. There must be some problem in the lab. So he will refer back to you. Okay? So pre-analytical errors usually they are prevented before any action is taken. Usually, most of the time. For example, this ET contamination will cause potassium
such a hypothesis that nobody will believe it. Okay, so that's why analytical errors are more important. I'm not saying that you should ignore pre-analytical errors, but rather the next question is how the non-analytical, pre-post analytical errors have to be. Because remember one thing, you cannot get hold of these errors just by doing method validation or quality management. Yes, it is delta check. So for non-analytical errors, pre-analytical and post-analytical errors, there is a procedure called delta check, and delta check we will discuss. दो तीन चीजें अभी इसमें रह गई हैं हमारी. एक हमने सिक्स सिग्मा करना है, डेल्टा चेक करना है, तो ये शायद एक आध और करेंगे. ठीक है इंशाल्लाह. What is the difference between method validation and method verification? ये वेरिफिकेशन है, बहुत ये टर्मिनोलॉजी कुछ है कंफ्यूजिंग. वैलिडेशन भी कहते हैं, वैल्यूएशन भी कहते हैं, वेरिफिकेशन भी कहते हैं. सो यहाँ मैंने सिर्फ दो लिखे हैं, लेकिन मेथड इवेल्युएशन भी एक मैं बता दूं. मेथड इवेल्युएशन मैंने बताया कि टर्म्स में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिटरेचर इज that method evaluation is for those methods which you have developed yourself in any lab, in an analytical lab or in your routine lab. You have carried out some modification in the method, and or you have just developed the method. Then what you do is method evaluation. In method validation, हाँ क्या लिखा है moderately? हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है मेथड वैल्यूएशन. जो मेथड वैलिडेशन है वो है कि मेथड इज एग्जिस्टिंग, कमर्शियली आपने खरीदा मेथड, अब आपको लैब में उसको जो वैलिडेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड वैलिडेशन. और मेथड वेरिफिकेशन ये है कि बहुत ही ब्रीफ सा है कि जो क्लेम्स हैं मैन्युफैक्चरर के उसको आप वेरीफाई कर रहे हो बस. ठीक है, तो लेकिन ये टर्म बड़ी इंटरचेंजेबल है, बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रोटोटाइप टर्म्स नहीं है. Generally method validation ज़्यादा use होती है. So method validation is the confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirement for a specific test intended use are fulfilled. अगर टीचर ना बैठा हो पढ़ाने के लिए तो कोई समझ सकता है इस डेफिनेशन को? नहीं समझ सकता ना. तो मकसद यही है कि जो जिस चीज के लिए आपने वो टेस्ट लिया है, जो उसका इंटेंडेड यूज है, उसको वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसका मकसद है. यानी जो आपने खुद नहीं डेवलप किया लेकिन आपने प्रोक्योर किया और उसके बाद उसको यूज कर रहे हैं. वेरिफिकेशन इज द कंफर्मेशन बाय एग्जामिनेशन एंड प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड एज क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, तो ये सटल सी डिफरेंसेस हैं इनमें. तो ये अगर कोई एग्जामिनर पूछे तो आपको पता होना चाहिए. Now another important question is when should method be validated? रोज तो नहीं मेथड वैलिडेशन करेंगे ना, कुछ थोड़ा सा यहाँ से बताएं पिंडी से. न्यू मेथड आपने चेंज किया, आपने मसलन पहले आप ग्लूकोज ऑक्सीडेज पे कर रहे थे, अब हेक्सोकाइनेज आया आपके पास. ठीक है, अब हेक्सोकाइनेज एस्टेब्लिश मेथड, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने सेटअप के लिए, अपने इंटेंडेड यूज के लिए उसको वैलिडेट करेंगे. ठीक है, और कोई एग्जांपल? इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है आपका. ठीक है, आप तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं. न्यू मेथड आपने लिया है, रिवीजन ऑफ एस्टेब्लिश्ड मेथड किया है कुछ, when established methods are used in different laboratories, different analytes etc. ठीक है, QC indicates method changes. ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हैं. अब यहाँ पे इस स्लाइड में इवैल्यूएशन और वैलिडेशन को एक सिनोनिमसली यूज किया गया है. ठीक है, तो ये न्यू मेथड करेंगे तो हमारी डेफिनेशन में तो मेथड इवैल्यूएशन है, लेकिन इसको हम मेथड वैलिडेशन में ही कर रहे हैं सब. तो रिवीजन, हाँ, अब ये हमारी जो एमफिल स्टूडेंट हैं, ये हो सकता है ये कर रही हूँ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे क्रोमियम कर रही हूँ, तो ये कहें नहीं मैं क्रोमियम का ये जो मेथड है इसमें कुछ चेंजेस करूंगी. अगर आपने चेंजेस की तो फिर आपको वैलिडेट करना पड़ेगा उसको. ठीक है, सेक्टर जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये सबसे अच्छा आना चाहिए. आप हैं तो थोड़ी 9 से भी ज्यादा आप हो गई हैं, लेकिन आप 9 ही लिख दें बस. 9 रिक्वायरमेंट समझ. और ये क्वेश्चन भी जरूर आता है आजकल. वो थोड़ी सी पहले आप इसको ना वो बिठाते हैं एग्जामिनर्स और कहते हैं कि
आप लिखें, ठीक है। तो आप प्रिसीजन जी 1 हो गया, मैं गिनता जाता हूँ। सेंसिटिविटी 2 हो गई। एक्यूरेसी ये क्या है? एग्रेसिव, एग्रेसिवनेस नहीं चेक करते, ये लड़के को नहीं चेक कर रहे। लीनियरिटी, रिकवरी, गुड। कैरी ओवर नहीं, कैरी ओवर तो नहीं है। इंटरफेरेंस, कैरी ओवर जो होगा अच्छा लिखा है आपने, प्रॉब्ली कैरी ओवर तो आप इंस्ट्रूमेंट की जब कर रहे हैं ना क्वालिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिफिकेशन करते हैं, क्यूज कहते हैं उनको, तो वो उसमें करते हैं। वो भी चले, हम वो जो हमारा एक लेक्चर पेंडिंग है ना, उसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिफिकेशंस भी करेंगे। सॉरी सर, जल्दी में, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एलओडी, एलओक्यू, रोबस्टनेस, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, गुड। चले जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी सर, स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो आप जब ये सारी चीजें चेक करते हैं, प्रिसीजन वगैरह, एक्यूरेसी, तो वो उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। यानी वो तो एक पार्ट है ना ट्रबल शूटिंग का हिस्सा है कि क्यों अगर कोई गड़बड़ आ रही है तो स्टेबिलिटी शो हो सकता है, ठीक है। हाँ वो उसके साथ भी करते हैं। हाँ मैट्रिक्स इफेक्ट तो है। जी जी जी, उसमें जी बिल्कुल बिल्कुल, मैट्रिक्स इफेक्ट बिल्कुल। अब ये जो सेंसिटिविटी है, यहाँ पे आपने भी लिखा था सेंसिटिविटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सेंसिटिविटी? इसको हम डिटेल में थोड़ा करेंगे बाद में, लेकिन ये कौन सी, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई होप कि आपको याद है, ट्रू पॉजिटिव ओवर, ट्रू पॉजिटिव ओवर, ये वो वाली नहीं है सेंसिटिविटी। हाँ ये एनालिटिकल सेंसिटिविटी है। हाँ ये याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी, वन इज क्लिनिकल सेंसिटिविटी ऑफ ए टेस्ट, वो बिल्कुल एक अलग चीज है, ठीक है। और ये हम एनालिटिकल सेंसिटिविटी है, ये हम आज देखेंगे क्या होती है, ठीक है। रेंज, लीनियरिटी, रिकवरी, प्रिसीजन, डिटेक्शन लिमिट। अच्छा किस चीज पे? अच्छा, एलओडी, एलओक्यू, selectivity or specificity of the method, robustness and ruggedness, ये भी थोड़ा सा मैं टच करूंगा, and reliability which is combination of accuracy and precision, ठीक है। तो these are the 9-10 parameters which are the requirements parameters by which we carry out method validation. Now what is accuracy? Accuracy क्या होती है? बहुत दफा पढ़ाया आप लोगों को, कोई और बताए इधर से? प्रकाश जी, व्हाट इज एक्यूरेसी? सर ये एक्यूरेसी तो क्लोजनेस टू द टारगेट वैल्यू, वेरी गुड। बस क्लोजनेस लफ्ज बहुत अच्छा बोल दिया आपने। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ द एनालिटिकल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, कितना वो करीब है ट्रू वैल्यू के, ठीक है। It is the closeness of the analytical value to true value. एक और टर्म आपने सुनी होगी, ट्रूनेस। ट्रूनेस और एक्यूरेसी में क्या फर्क है? व्हाट इज ट्रूनेस? एक ही है, अच्छा एक ही है, बिल्कुल। तो बायस जो है निकालते तो ट्रूनेस और मतलब इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बायस, एग्रीमेंट, तो वो भी तो एग्रीमेंट है, तो इंटरचेंजेबल यूज करते हैं इसको। इंटरचेंजेबल है, पहली तो बात ठीक है, इंटरचेंजेबल है। ये जो टर्म है ना, ये अब वही हमारे जो मीट्रोलॉजिस्ट है ना, आप ये एक रोटेशन सिस्टम में जाएंगे ना, तो वहाँ एक्यूरेसी की जगह ट्रूनेस वर्ड यूज होता है, ठीक है, और एनालिट की जगह मेजरन यूज होता है, ठीक है। तो ट्रूनेस जो है वो इसको जो डिफाइन किया गया है, द एग्रीमेंट बिटवीन द एवरेज ऑफ द मल्टीपल मेजरमेंट्स। आपने मल्टीपल मेजरमेंट्स किए हैं और उसका एक एवरेज लिया आपने, मीन लिया आपने, मीन या मीडियन लिया, और उसको टारगेट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। आप कोई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप एक्सटर्नल क्वालिटी उसमें कंट्रोल में है,
ठीक है, उसमें आपने जिसे कहते हैं ना मेथड मीन लिया होता है, मेथड मीन को टारगेट के साथ कंपेयर कर साथ किया जाता है, वहां पे वो एक्चुअली ट्रूनेस है, वो सिंगल वैल्यू नहीं है। सिंगल वैल्यू को सिंगल वैल्यू से कंपेयर करें तो इट इज लाइक यस लार्ज टारगेट वैल्यू, लार्ज टारगेट तो नहीं, क्या लिखा लार्ज टारगेट नहीं, लार्ज नहीं, टारगेट वैल्यू तो एक ही होगी, जो आपने मेजरमेंट किए हैं, ये जो आप मेजरमेंट कंपेयर कर रहे हैं, दैट मेजरमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल मेजरमेंट्स, ठीक है, उसका एवरेज लिया गया, तो ये ट्रूनेस कहलाती है। बायस क्या होता है? बायस सिर्फ ये बता दो, बायस किस चीज की मेजरमेंट है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी। चलिए जी, ये पीछे से कौन बैठा है इधर जी? हाँ मेरीन, आप बताइए बेटा, वह कैसे बायस निकालते हैं? जी माइनस, यानी उनका डिफरेंस निकालते हैं। अब हो सकता है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा हो या टारगेट वैल्यू ज्यादा हो, तो इसमें जो प्लस माइनस कोई भी नोटेशन आ सकती है, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसको, बहुत सिंपल, बायस इज अ वेरी सिंपल थिंग, इसको कभी कॉम्प्लिकेट ना करें, कि आपके दो वैल्यूज में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बायस। आप इसका एवरेज बायस भी निकाल सकते हैं, आप परसेंटेज बायस भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज बायस ये है कि जो डिफरेंस आ रहा है उसको 100 से करें तो वो परसेंटेज बायस आ जाता है, ठीक है। This is a measure of the difference between the expected test result and the accepted reference value due to systematic method and laboratory error. दोनों में जो फर्क आ रहा है वो आप उसको बायस कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस एज परसेंटेज, परसेंटेज से यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन वो हाँ मल्टीपल जब आप मेजरमेंट करते हैं, दिस इज स्कैटर ऑफ द वैल्यू अराउंड ए सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अच्छा, अब आपने जरा आज एक शायद कुछ लोगों के लिए नई टर्म्स हो, ये टर्म्स जरा डिफाइन करनी है, तीन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड इंटरमीडिएट प्रिसीजन। तो मुझे आप 2 मिनट की ब्रेक देंगे, मैंने एक इम्पोर्टेंट फोन करना है, तो आप लोग लिखें इसकी डेफिनेशन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड इंटरमीडिएट प्रिसीजन। आज उन्होंने कुछ सेमिनार में जाना मैं वो सुबह आया था, वो रात को नहीं आया था, वो सुबह टेस्ट सैंपल जब निकलने लगा तो सब आया था, तो चेंज ऑफ द स्प्रिंग वो मैंने करवा दिया था। यूरिन का सैंपल कोई वाइप ऑफ कर देना जी मैम, वो तो पता नहीं मैंने थी वाइप ऑफ करना आवाज तो बिल्कुल तो कैसे मैं सुन रही थी, सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं बता दूं उसको सब। हां प्रेशर वाइप ऑफ करना गनर ये आर्टिलरी के जो सिपाही होते हैं, सैपर्स जैसे नहीं कहते, मैं कर्नल समझा था ना, सैपर्स भी होते हैं ना। हाँ ठीक है, ये एक सैपर्स उसके होते हैं, मैं कर्नल से आ रहा हूँ, सैपर्स से आ रहा हूँ। हेलो, वालेकुम। अच्छा सर, ये जो कल सैंपल थे तुमने पहुंचा दिया डिपार्टमेंट में? ये कंफर्म किया करो ना, ठीक है। अच्छा, आज उसी का आया है यूरिन का सैंपल सुबह, वाइफ ऑफ गनर सरफराज, देखो बताओ अर्जेंट रिपोर्ट। हाँ मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है उसको
ओके जी, हाँ जी, आप लोगों ने लिखी है, क्या क्या लिखा है? रिपीटेबिलिटी अंडर सेम ऑपरेटिंग, और इंटरमीडिएट प्रिसीजन। अच्छा चलो देख लेते हैं, मान कर these are three parameters which are used for precision. Interprecision is determined under conditions that are intermediate. हाँ ठीक है, चले मान कर। Repeatability expresses the precision under the same operating. ये जो हम इंट्रा एस्से कहते हैं ना प्रिसीजन को, इसको रिपीटेबिलिटी कहते हैं, इंट्रा एस्से प्रिसीजन को, ठीक है। इनको इंट्रा एस्से प्रिसीजन भी कह सकते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी में इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको कि लिटरेचर में यूज होती है, एंड somebody may ask you. So it is the intra-assay precision, and reproducibility is expressed the precision between laboratories. यानी आप ये जो आप क्वालिटी एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, you are actually checking your reproducibility because your results are being compared with other laboratories. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, repeatability and reproducibility, they are two extremes. There are two extremes. One is intra-assay, same day, same person, in the same batch, you are running a control or any material. यानी एक ही दफा आपने कंट्रोल मटेरियल लिया है और उसको 20 दफा लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये रिपीटेबिलिटी होगी। और ये एग्जाम में बहुत आता है क्योंकि बहुत आसान है करना। ये तो सबसे आसान एक्सपेरिमेंट होता है कि आपको एक कंट्रोल मटेरियल दिया जाता है और आप कहते हैं कि इसकी रिपीटेबिलिटी करो, तो आप उसी को 20 दफा, 25 दफा, 30 दफा लगा लेते हैं। दिस इज रिपीटेबिलिटी। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है कि आप दुनिया में 100 लैब्स को एक ही सैंपल भेजते हैं और वो जो रिजल्ट देते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रिसीजन, और इसको हम दूसरी जुबान में इंटर डे या डिफरेंट डे प्रिसीजन भी कहते हैं, बिटवीन डे प्रिसीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो बिटवीन डे प्रिसीजन का दूसरा नाम इंटरमीडिएट प्रिसीजन है। So remember these terminology, they will help you at some time. रिकवरी आप लोग बहुत करते हैं, रिकवरी हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। इट इज डिटेक्शन ऑफ ए नोन अमाउंट ऑफ एनालिटिकल पैरामीटर एडेड। इसके लिए स्पाइक का लफ्ज यूज होता है, याद रखिए। हम कहते हैं स्पाइक किया, बहुत जगह आप पढ़ेंगे कि स्पाइकिंग करके देखा। तो स्पाइक का मतलब ये होता है कि आपने कोई नॉन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऐड किया, ठीक है। इट इज अ मेजर टू एस्टिमेट एक्यूरेसी बाय एनालाइजिंग सैंपल्स स्पाइक्ड एट 3 different concentrations, low, medium, high, covering the working range. तो आइडियली तो ये करना चाहिए कि आप 3 डिफरेंट जो है ना वो उसको अमाउंट्स को उसमें ऐड करें, स्पाइक करें और उसके बाद चेक करें। और ये एक्सपेरिमेंट भी जरूर आता है रिकवरी में या आपकी मेथड वैलिडेशन में, लेकिन यूजुअली हम एक ही दफा कहते हैं करो सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिकली तो जो चेक करेंगे तो हम रिकवरी करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकली इसका आगे आएगा कि एक्चुअली रिकवरी, व्हाट एक्चुअली यू टेस्ट बाय डूइंग रिकवरी। आप क्या चीज चेक कर रहे हो, तो जरा जल्दी लिखें, क्या चीज चेक कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए। व्हाट यू आर चेकिंग व्हेन यू आर डूइंग रिकवरी एक्सपेरिमेंट्स? नहीं, वर्किंग रेंज तो आप कर ही रहे हैं। एरर कौन सी एरर? प्रोपोर्शनल सिस्टमैटिक एरर, हाँ शाबाश, लाहौर वाला प्रोपोर्शनल सिस्टमैटिक एरर चेक करें। यानी एक तो आप एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, यानी जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं सिस्टमैटिक एरर चेक कर रहे हैं। और आप उसकी ये प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट है, यस यू आर राइट, आप उसमें प्रोपोर्शनल एरर चेक कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल एरर का मतलब ये होता है कि ये एरर विद द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होती है, ये एरर बढ़ जाती है। यानी 100 मिलीग्राम
पे ग्लूकोज पे एरर कम होगी और 500 मिलीग्राम पे बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये आपको अगला क्वेश्चन ये है कि ये आप इसकी कॉजेज क्या होती हैं, कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जो ये प्रोपोर्शनल एरर करती हैं। जो प्रोपोर्शनल एरर, जाहिर है हर किस्म की कॉज नहीं करेगी प्रोपोर्शनल एरर, कौन सी कॉजेज हैं जो प्रोपोर्शनल एरर करती है। ठीक है, परसेंटेज रिकवरी कैसे निकालते हैं, ये CF मींस कंसंट्रेशन मेड इन 45 सैंपल का मतलब है इसमें स्पाइकिंग हुई है, तो उसको CF कहते हैं, यानी 45 सैंपल। और CU विद अनफोर्टिफाइड, यानी जिसमें आपने ऐड नहीं किया। तो डिफरेंस बिटवीन CU एंड CF एंड CU इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन एडेड, जो आपने ऐड की थी वो CF माइनस CU होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। वो आखिर में कुछ हैं MCQs हैं, उसमें ये सारी चीजें दोबारा आएंगी और वो MCQs से आप काफी फेमिलियर भी होंगे, डोंट वरी अबाउट देम। लिनियरिटी एंड रेंज, ये एक ही इसमें लिखते हैं कि AMR भी कहते हैं इसको, एनालिटिकल मेजरमेंट रेंज, और लिनियरिटी भी कहते हैं। The linearity of a method is ability to elicit results that are directly or by a well-defined mathematical transformation proportional to the concentration of analyte in the sample. अब इस मुश्किल अंग्रेजी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप उसको, यानी अगर आप प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे, तो आप जो यानी जो उसका कंसंट्रेशन है, जो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका जो यानी आप दो मेथड आपने किए हैं, या जो टारगेट वैल्यूज, एक वो है जो आपकी नोन वैल्यूज हैं जो आपने खुद बनाई हैं, डाइल्यूशंस के साथ बनाई हैं, और एक वो वैल्यूज हैं जो आप मेजर करते हो। ठीक है, जो आप मेजर करते हो, तो ये दो वैल्यूज हैं। तो इन दोनों के दरमियान आप जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये सिंपल मैनुअल विजुअल मेथड है। लेकिन एक जो ये मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है वो ये कि आप इसको SPSS पे डालें और फिर कौन सा टेस्ट लगाएं उसके ऊपर, जिससे आपको लिनियरिटी पता चल जाती है। पियर्सन कोरिलेशन, वेरी गुड। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लें, इसका R की वैल्यू निकाल लें, एंड दैट शुड बी मोर देन 0.97 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, द रेंज ऑफ द मेथड इज द एरिया बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन दैट इज आल्सो लीनियर, यानी रेंज ये है कि लो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट है, और अपर वैल्यू क्या है जहाँ पे, तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो रेंज आ जाएगी। Within the range of the method, results are accurate, precise and linear. तो ये linear लफ्ज बहुत यूज होता है। Results are linear, results are not linear. Linear का मतलब ये है कि वो जो कर्व है वो linear, उसकी शेप जो है ना वो सीधी है बिल्कुल, ये याद रखिए। Linear का मतलब है straight कर्व। अगर कोई कर्व उल्टी बनी हुई है, टेढ़ी बनी हुई है, सिग्मॉइड बनी हुई है, तो दैट इज नॉन लीनियर। वो भी हो सकता है, नॉन लीनियर रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन लीनियर का मतलब है कि स्ट्रेट कर्व बनी हुई है। एक्यूरेट हो सकता है मगर लीनियर नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है तो उसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड होगा, तो सभी हम लीनियर ही कहेंगे कि उसको अगर क्या हो कंसंट्रेशन हाँ है तो वो कम हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल देखें, एक जरा कंफ्यूजन आप अपनी दूर करें कि ये जो लिनियरिटी है कि आप किस तरह से प्लॉट करते हैं। अभी जो मैं जो आपको, चूंकि आपके एग्जाम में इस तरह आता है, मैंने वो एग्जांपल दी आपको कि आप की एक टारगेट वैल्यू है, ठीक है, और एक वो वैल्यू जो आपने मेजर की है, उन दोनों को प्लॉट करेंगे। लेकिन ये लिनियरिटी एक्सपेरिमेंट आप एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, कि एक तरफ आप एब्जॉर्बेंस प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस हो और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन हो, तो वो तो उस वक्त बनाएंगे, प्लॉट करेंगे जब वो मेथड आप बिल्कुल इनिशियल मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो होना चाहिए बिल्कुल लीनियर कर्व, जहां अब वहां पे जब वो बना रहे हैं मेथड, तो जिस जगह पे वो जो पॉइंट अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, वहां तक आप कहेंगे ये इसकी अपर लिमिट है। ठीक है, व्हेन इट इज प्लॉटेड बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड द कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है और एब्जॉर्बेंस एक्स एक्सिस, क्योंकि जो एब्जॉर्बेंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका कंसंट्रेशन है वो डिपेंडेंट है। आप एब्जॉर्बेंस से कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है। अगर आप वो वाली प्लॉटिंग करें जैसे हमारी कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट होती है, तो उसमें जो 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 वैल्यू सबसे उस लाइन के अंदर टच कर रही है वहां तक वो कहता है जी ये इसकी अपर लिमिट है। इसी तरह नीचे जहां तक वो टच करी है वो लोअर लिमिट है। तो ये एनालिटिकल मेजरमेंट रेंज उस तरह से निकाली जाती है। अब हम जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ये उसकी वैलिडेशन है, दिस इज इट्स वैलिडेशन, ये याद रखिएगा। ये कैलिब्रेशन कर्व नहीं है, ये जो आप यहाँ लिनियरिटी बनाते हैं वो कैलिब्रेशन कर्व की लिनियरिटी इनिशियली मैन्युफैक्चर बनाता है, ठीक है। तो आप जो है ये इसको बना रहे हैं, आप इसकी वैलिडेशन कर, तो वैलिडेशन ऑफ लिनियरिटी कर रहे हैं आप इस एक्सपेरिमेंट से। एक्चुअली आप वैलिडेशन ऑफ लिनियरिटी कर रहे हैं, समझ आई ना सर, ठीक है। तो ये वैलिडेशन होती है, ठीक है। अब ये लिनियरिटी है, ये सामने आपके बनी हुई एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यूज है, कुछ वाई एक्सिस पे है, और ये देखें इसमें तो बहुत अच्छी कर्व है, इसमें 5 मिनिमम 5 होनी चाहिए, आपकी जो वैल्यूज हैं मिनिमम 5 होनी चाहिए। जब आपने 5 वैल्यूज लगाई तो अब आपने एक रूलर लेना है, आपने 3 वैल्यूज लगा दी, ठीक है, यहाँ प्लॉट करनी है आपने। अब मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज वो हैं जो टारगेट है, यानी जो आपने एक सैंपल लिया, एक कोई आपको मटेरियल मिला, आपने उसकी डाइल्यूशन बनाई और उसकी वैल्यूज लिख दी 0.6, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है, ये तो नॉन वैल्यूज है। और लेफ्ट पे भी इसी तरह ये वैल्यूज लिख दी। लेकिन जब आपने नंबर 1 को मेजर किया तो जो 0.5 है वो 4.9 आ गई, ठीक है। आप 4.9 को आप 0.5 के साथ मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? 0.5 से 4.9 से एक लाइन, 0.49 से एक लाइन आप निकालेंगे, ये यहाँ से, ये देखें यहाँ से एक लाइन निकालेंगे और इसको यहाँ तक लाएंगे और 0.5 से एक लाइन ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ ये दोनों लाइनें मिलेंगी वहाँ आप निशान लगा देंगे। दिस इज योर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह जो 0.6 थी फॉर एग्जाम्पल वो वो आ रही है 6.1 आ रही है, ठीक है। इस केस में ये लो आ रही है, चलो लो ही देख लेते हैं, ये 5.8 आ रही है, 0.58 आ रही है, सॉरी 0.58 आ रही है। तो ये एक आप लाइन निकालेंगे 0.58 और इधर ले आएंगे और इधर से, लेकिन इधर से आप 0.5 ही लेके जाएंगे ऊपर, 0.6 ही ऊपर लेके जाएंगे और जहां ये दोनों मिलेंगी यहाँ एक निशान लगा दिए। इस तरह से एटलीस्ट आपको 5 डॉट्स लगा दिए, 5 डॉट्स लगा दिए। अब एक रूलर लें, सिंपल रूलर कोई भी, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसमें मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम वो कवर हो रहे हो डॉट्स, ठीक है। अब उसने जो मैक्सिमम कवर किए हैं 3, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं ना, तो 3 से कम तो नहीं होंगे ना, तो 3 उसने ये कवर किए। ये देखें नंबर 1 ये इसमें टच किया, ये टच किया और ये टच किया। तो अब आपने ये नहीं जरूरी कि आप वो 0 से स्टार्ट करें, आप वो कहीं पे भी मिल सकता है। वाई एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट उसको कहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उसको प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस पे नहीं आपने जाना, कोई भी 3 पॉइंट्स आपने मिला देने। अब जब आपने मिला दिए तो जो ऊपर की सबसे टॉप की है उससे आप उसकी अपर लिमिट निकालेंगे और जो लोअर है उससे आप लोअर लिमिट निकालेंगे। अगर अपर उसमें नहीं आई जब आपने मिलाया उसको, तो अपर उसमें मिस हो गई, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, आप अपर लिमिट जो है ना उससे नेक्स्ट पे लगा देंगे, ठीक है। ये सिंपल बात है। मतलब इसमें 0.9 अगर उसकी आपकी लाइन में नहीं आ रही थी और 0.8 आ रही थी तो आप कहेंगे अपर लिमिट 0.8 है। लेकिन उसमें छोटी सी और भी वेरिएशन है कि अगर वो 0.9 पे तो नहीं आई, लेकिन जैसे ये वाली वैल्यू देखेंगे बहुत करीब है उसके, बिल्कुल टच तो नहीं कर रही लेकिन बहुत करीब है, ठीक है। इसी तरह अगर ये बहुत करीब हो उसके, तो फिर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी है। अगर वो वैल्यू विद इन टोटल अलाउएबल एरर हो तो आप फिर कहते हैं कि नहीं मेरी अपर लिमिट यही है, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी फाइनल डिटेल्स है कि आपका जो डिफरेंस है दोनों का वो अलाउएबल एरर के अंदर अगर आ रहा है तो फिर आप इसको अपर लिमिट बना देंगे।
एग्जैक्टली यही चीज आप लोअर लिमिट पे करते हैं। अब इसके साथ ही दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच आर कॉल्ड लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर द लोअर वैल्यूज, लोअर लिमिट्स के आप यूज करते हैं। कि मसलन आप मैं ग्लूकोज की एग्जांपल देता हूँ और मिलीग्राम में देता हूँ, आपको डेसिमल का इतना चक्कर नहीं होता उसमें। तो ग्लूकोज कहाँ तक आप मेजर कर सकते हैं? मसलन यूजुअली हमारी जो किट होगी वो 20 मिलीग्राम मेजर करेगी, 25 करेगी, 15 करेगी, 18 करेगी, इससे नीचे करने बहुत मुश्किल है उसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू वो है जो कि उसको डिफरेंशिएट करती है कि प्रेजेंट ना एब्सेंट और प्रेजेंट, सिर्फ ये बताती है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको कहते हैं लिमिट ऑफ डिटेक्शन, यानी वो डिटेक्ट करती है। उसकी आप एक्यूरेसी प्रिसीजन पे नहीं कमेंट करते, वो कॉन्फिडेंट नहीं है लेकिन वो डिटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ डिटेक्शन इज ऑफ अ मेथड मे बी डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन of analyte which gives rise to signal that is significantly different from the control or blank। ठीक है, ब्लैंक कहें आप, कंट्रोल को छोड़ें, आप ब्लैंक कहें कि ब्लैंक वो क्या चीज है? ब्लैंक वो चीज है जिसमें आपने ग्लूकोज नहीं डाला, यानी सैंपल नहीं डाला आपने। ठीक है, या आपने जो आपने मटेरियल चेक कर रहे हैं वो नहीं आपने ऐड किया, और यहाँ पे ग्लूकोज चेक कर रहे हैं ना इस एग्जाम्पल में, तो ब्लैंक में आइडियली ग्लूकोज नहीं है, जीरो है। ठीक है, अब आपने बस ये देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो ब्लैंक को डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, यानी कितनी, वो समझ लें एक जाहिल है ना, बिल्कुल एक अनपढ़ है जो लिख भी नहीं सकता, तो हमारे यहाँ लिटरेसी के लिए ये है कि जो अपना नाम लिख ले बस वो लिटरेट है, तो उसको बिल्कुल जीरो से डिफरेंशिएट ये करते हैं कि उसको लिखना आता है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ डिटेक्शन ये है कि ब्लैंक में अगर टेस्ट करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ग्लूकोज कुछ नहीं आएगा, और इसमें करेंगे तो आ जाएगा ग्लूकोज। तो अब ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सपोज करते हैं कि मेरा लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन 20 है, 20 पे वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि डिफरेंस आ रहा है दोनों में। अब आप उसको और लोअर कर देते हैं, आप 15 करके देख लेते हैं, 15 पे देखा तो अब डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप कह देते हैं 20 है, या अगर आपने एक और जरा ज्यादा करना है तो आप 18 पे कर लें, 16 पे कर लें, तो यानी वो वैल्यू देख लें जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उससे नेक्स्ट और वैल्यू और कम करेंगे तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। वो लोएस्ट क्वांटिटी है जहाँ पे ब्लैंक से वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब वो डिफरेंस का क्या मतलब है, वो किस तरह करते हैं, वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन ये आप समझ लें पहले कि एलओडी क्या चीज है, कि आपने ब्लैंक से इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, the LOD is the lowest concentration of analyte that can be distinguished from background. The results obtained at the limit of detection are not necessarily precise, और यानी यहाँ पे सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि डिफरेंस है, लेकिन इसकी जो वैल्यू 20 मिलीग्राम है इस पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि 20 है या 22 है या 19 है या 18 है, बस ये है कि इस 20 को डिफरेंशिएट कर लेता है ये। ठीक है, ये लिमिट ऑफ डिटेक्शन होती है। अच्छा ये बताइए मुझे, यहीं पे चले मैं पूछ लेता हूँ, ब्लैंक में भी कोई रीडिंग आएगी? आपको पता है ब्लैंक को जब आप लगाओगे ना ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज ऑक्सीडेज करके उसको लगाओगे, उसमें आपने कोई चीज ऐड नहीं की, उसकी भी एक रीडिंग आ जाती है। ये जो रीडिंग आती है जिसमें आपने कोई चीज ऐड नहीं की, जिसमें आपने कोई एनालाइट ऐड नहीं किया, ग्लूकोज ऐड नहीं किया, लेकिन उसकी रीडिंग आ गई, इस रीडिंग को क्या कहते हैं? नॉइज। वेरी गुड। आज आप ये सीख जाएं कि नॉइज क्या चीज होती है। एक तो नॉइज वो होता है ना जो कमरे में करते हैं लोग, वो नॉइज नहीं है हमारे यहाँ। नॉइज उसको कहते हैं कि ऐसा सिग्नल या ऐसी रीडिंग आ जाना, मैं बिल्कुल कॉमन टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसी रीडिंग आ जाना जो कि एनालाइट के बगैर हो। ठीक है, एनालाइट ऐड किए बगैर भी रीडिंग आ जाती है, कुछ ना कुछ रीडिंग आ सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम पहले ये करते थे, सर आसिफ ये कह रहे हैं कि पहले ये हम करते थे कि हम उस नॉइज को खत्म करने के लिए उसको खुद जीरो पे कर लेते थे, तो उसको कहते थे जीरोइंग ऑफ द ब्लैंक, ब्लैंकिंग भी करते थे उसको, कि आप उसको कहते थे ठीक है ये आ रही है रीडिंग,
लेकिन छोड़ दो इसको। लेकिन वो क्या है, वो नॉइज है। और किसी भी टेस्ट में, वैसे ये ऑफ द रिकॉर्ड, किसी भी टेस्ट में नॉइज कम से कम होना चाहिए। अच्छा टेस्ट वो होता है जिसमें नॉइज ना हो। नॉइज के मुकाबले में एक और टर्म है विच इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल से मतलब ये है कि जो जब आपने एनालाइट ऐड किया है, जो जिसको आपने मेजर करना है, व्हेन यू ऐड दैट थिंग और उससे जो रीडिंग आती है, दैट इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसीलिए निकाली जाती है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन समझने की बात है ना कि नॉइज किसको कहते हैं। नॉइज वो होता है जो एनालाइट के बगैर जो भी रीडिंग आए उसको नॉइज कहते हैं। और सिग्नल कौन सा होता है, जो 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 एनालाइट डालने के बाद जो आती है, कोई भी रीडिंग, कोई भी एनालाइट डाले जो रीडिंग आएगी वो सिग्नल कहलाती है। अब एलओडी निकालने के बेसिकली 3 तरीके हैं। ठीक है, एक को कहते हैं विजुअल इवैल्यूएशन। ये सिंपल, यानी आप देख लें कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ, या कोई इस तरह का आपका मेथड हो, उसको कहते हैं। डिटेक्शन लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द एनालिसिस ऑफ सैंपल विद नोन concentration of analyte and by establishing the minimum level at which the analyte can be reliably detected। यानी आप सिंपल उसको देखें कि उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, रीडिंग का नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा मेथड है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ये आप समझ लें। डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज परफॉर्म्ड बाय कंपेयरिंग measured signals from the samples with known low concentration of analyte with those of blank samples, and by establishing the minimum concentration at which the analyte can be reliably detected. A signal to noise ratio between 3 or 2.1 3 or 2 to 1 is generally considered acceptable for establishing the, यानी जो आपने निकाला उसको आपने, मैंने कहा सीरीज में आपको करना पड़ेगा। ग्लूकोज की एग्जांपल लें, 30 से किया, फिर 25 से किया, फिर 20 से किया, और इसके मुकाबले में ब्लैंक के साथ साथ करते रहे। तो क्या नहीं, हाँ शाबाश, वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर दोनों का डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस नहीं, जो रेशियो आ रही है, रेशियो आई है, यानी अगर 20 मिलीग्राम पे जो रीडिंग एब्जॉर्बेंस की आई थी, वो 2 को छोड़ दें आप, 3 है, 3 ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा है ब्लैंक से, ब्लैंक की रीडिंग से 3 गुना ज्यादा है, बस वो आपकी एलओडी है। जो आपने मसलन 20 मिलीग्राम पे एब्जॉर्बेंस ली, तो वो आई 0.03, ठीक है, 0.03, और ब्लैंक की रीडिंग ली, वो आई 0.01, तो आपकी एलओडी 20 मिलीग्राम में। समझिए, कर लेंगे प्रैक्टिकली कि नहीं? इसको अब सारे लोग अपने हाथ से एक दफा करेंगे आके, ठीक है, एक माइक्रो लैब पे करेंगे, उसमें एब्जॉर्बेंस लें उसकी, ठीक है, और 0.20 मिलीग्राम डालें उसमें ग्लूकोज सिर्फ, और देखें उसकी कितनी एब्जॉर्बेंस आती है, और एक बगैर 20 मिलीग्राम डाले देखें उसकी कितनी आती है। ठीक है, अगर वो 3 टाइम ज्यादा है तो वो उसकी एलओडी है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस एलओडी की, ये वाली एलओडी की क्या इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में? मैंने क्यों ये ग्लूकोज की एग्जांपल दी है? आप हाइपोग्लाइसीमिया को डिटेक्ट करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हर जगह हर चीज की इंपॉर्टेंस नहीं होती, किसी जगह किसी एनालाइट में कोई रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। यूरिया की एलओडी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि लो यूरिया आप कभी भी नहीं मेजर कर रहे होते, ठीक है। टीएसएच में, बिल्कुल टीएसएच में, और लेकिन मैडम की लैब, मैडम आयशा की लैब में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलओडी एलओक्यू क्या है, ठीक है, या ट्रीटमेंट मॉनिटर कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके अलावा ये है कि आप उसकी एसडी निकाल लें, ये भी एक मेथड है कि डिटेक्शन लिमिट में भी एक्सप्रेस्ड एज 3 into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लो कंसंट्रेशन स्लोप ऑफ द कैलिब्रेशन। बाज लोग स्लोप से करते हैं और बाज लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो एब्रिविएशन है वो कैपिटल एस है, और स्लोप की स्मॉल एस है, ना सॉरी उल्टा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की स्मॉल एस है और स्लोप की, स्लोप जो होती है और लीनियर रिग्रेशन वाली स्लोप को कहते हैं। तो अगर जो उसकी 3 रीडिंग लें आप, ठीक है, और उसको जो लोअर लिमिट है
जो भी आपने ली है उसकी 3 रीडिंग लें और उसकी एसडी निकालें और एसडी को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एलओडी है इसकी, ठीक है। एलओक्यू बिल्कुल वही चीज है, द लिमिट्स ऑफ क्वांटिफिकेशन आर द लोएस्ट एंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल और स्पेसिमेन दैट कैन बी मेजर्ड विद एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यानी जो वो वाली लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। ये एलओक्यू हाई के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये बात याद रखिए। एलओक्यू हायर के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जहाँ पे आप को उसकी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं है आप कॉन्फिडेंट, ठीक है, उसको एलओक्यू कहते हैं। ये भी आप बेसिक विजुअल यानी डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अब जब आप इसको सिग्नल टू नॉइज रेशियो में करेंगे तो जो रेशियो है वो 3 की बजाय 10 हो जाएगी, यानी नॉइज से 10 टाइम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 3 टाइम नहीं बल्कि 10 टाइम ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें 10 की जैसे किसी ने लिखा भी था। और इसी तरह अगर आप एसडी निकाल के करेंगे तो 10 एसडी होना चाहिए इसका। एलओडी में 3 टाइम्स है एसडी और इसमें 10 टाइम्स एसडी। ये एक एग्जांपल मुझे अच्छी मिली थी, तो अगर आपको समझ आए तो मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें उसने जो निकाली है वो स्लोप से निकाली है। जैसे मैंने कहा था ना, स्लोप से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये स्लोप कैपिटल एस से उसको डिनोट किया है और एलओडी जो है वो ये 3.3 जो स्लोप आई है उसका 3.3 से उसको मल्टीप्लाई किया है। और इसी तरह एलओक्यू निकाली है, एलओक्यू ये हायर में निकाली है उसने, एलओक्यू हायर में है तो वो 10 से मल्टीप्लाई करके निकाली है, ठीक है। तो ये मैं प्रेजेंटेशन आपको भेजूंगा, फिर आप इसको थोड़ा और डिटेल में देख लीजिएगा। अब एक टर्म और यूज होती है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी टू रिमेन अनअफेक्टेड बाय स्मॉल बट डेलिबरेट वेरिएशंस इन मेथड पैरामीटर्स। यानी ये जो है ना रोबस्टनेस होगी, एक और टर्म अभी इसके बाद आएगी, जरा इसलिए इसको गौर से देख लीजिए कि इसमें डेलिबरेट आप चेंजेस करते हैं, यानी आप पीएच को चेंज करके देखते हैं, आप उसकी मोबाइल फेज को एचपीएलसी कर रहे हैं तो मोबाइल फेज को करें एलसी में करें। तो ये जो उसकी आप डेलिबरेट वेरिएशन खुद एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वेरिएशन कर रहे होते हैं और उससे रिजल्ट में अगर कोई फर्क नहीं आ रहा, आपके मेथड वैलिडेशन में आप कह रहे हैं उसका, अब क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। मेथड वैलिडेशन कर रहे हैं, चलिए आप इसी की एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी? विथस्टैंड, वेरी गुड, एबिलिटी टू विथस्टैंड चेंजेस। लेकिन वो चेंजेस जो आप खुद करके देखते हैं उसको, कि अगर लिखा हुआ है कि 37 पे आपने इसको इंक्यूबेट करना है और आप उसको 33 पे कर लेते हैं, 30 पे कर लेते हैं और रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता, तो आप कहते हैं कि मेथड रोबस्ट है, ठीक है। रोबस्ट का मतलब होता है जो चेंजेस को और हार्ड किस्म के एटमॉस्फेयर को जो चीज बियर कर ले वो रोबस्ट कहलाती है, ठीक है। वो मैं वॉशिंग मशीन की मिसाल देता हूँ ना, वो जो कपड़े मोटे होते हैं उनको धोने के लिए रोबस्ट पे रखते हैं उसको, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशन ऑफ पीएच इन अ मोबाइल फेज, इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशन इन मोबाइल फेज कंपोजिशन, डिफरेंट कॉलम्स, ये तो उसने एनालिटिकल उसमें एग्जांपल दी। किसी भी चीज में अगर आप खुद चेंजेस करके देखेंगे, नहीं आपको एग्जामिनर कहे कि आप इसकी रोबस्टनेस चेक करो, तो रोबस्टनेस आप ऐसे चेक करोगे, आप उसकी थोड़ी पीएच चेंज करके देखो, माइनर सी, ज्यादा नहीं करना, टेम्परेचर चेंज करो, रूम टेम्परेचर चेंज हो। मसलन हमें रोबस्ट मेथड चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ कभी गर्मी में टेस्ट हो रहा होगा, किसी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एसी नहीं है, वहां पे भी ग्लूकोज करना है, तो वो कहें जी यहाँ तो टेम्परेचर 35 डिग्री है रूम टेम्परेचर, यहाँ ग्लूकोज कैसे करूं? तो आपका मेथड रोबस्ट होना चाहिए, which should withstand those temperature changes। ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये बड़े नाजुक हैं, इसमें रोबस्टनेस बड़ी खराब है। हमें इस मौसम में भी, जबकि पिंडी में अच्छी खासी सर्दी है, हमें कई दफा एसी चलाने पड़ते हैं अपने कमरों उसके लेबोरेटरियों के, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है उनकी टेम्परेचर। रेगुलरनेस भी एक टर्म है, that is the degree of reproducibility of test results under a variety of conditions। यानी जितना किसी लेबोरेटरी की कौन सी चीज अच्छी है तो वो रगड़ कहेंगे,
कौन सी सीवी तो लिखा है इसमें, लेकिन वो जो हमने प्रिसीजन में 3 चीजें पढ़ी थी, तो कौन सी चीज किसी टेस्ट की बेहतर हो तीनों में से? नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। वो तो कोई रगड़नेस ना हुई ना, अगर विद इन बैच अच्छी है फिर तो कोई बात नहीं, वो इंटरमीडिएट आई ना। लेकिन उससे भी अच्छा है कि एक टेस्ट है वो आप यहाँ करते हैं, अपनी लैब में करते हैं, और उसका रिजल्ट जो है ना वो वही ग्लूकोज है, चलें ग्लूकोज तो छोड़ दें, आप ALT है, आप अपनी लैब में करते हैं, वो 45 आ जाता है, आप AM कॉलेज भेजते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, वहां से 46 आ जाता है, FIC भेजते हैं, वहां से 47 आ जाता है, आप कहते हैं बड़ा रगड टेस्ट है। दिस इज रगडनेस, यानी जितनी उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज्यादा है उतने उसमें रगड़। अब आप ये करते हैं, आप यहाँ 10 दफा कर लेते हैं, 10 दफा AM कॉलेज में कर लेते हैं, 10 दफा FIC में कर लेते हैं, करके 30 हो गई। अब 30 की आप CV निकाल लें, 30 एक ही कंट्रोल मटेरियल लिया आपने, पेशेंट सैंपल लिया, एक सैंपल लिया, उसको 10 दफा तीनों जगह कर लिया, ठीक है, उनकी आपने CV मीन SD निकाल ली, CV निकाल ली, और जितनी लो CV होगी उतना वो टेस्ट रगड़ है। मजेदार चीज है ना। हाँ, मतलब ये कि उसमें अगर मसलन हाँ रीजेंट में मतलब उसकी pH चेंज कर दिया आपने, हाँ बफर चेंज कर दिए, मेन तो हाँ डिफरेंट डेज, डिफरेंट बफर, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट, यानी आपने वो टेस्ट माइक्रोलैब पे किया, उधर जाके आपने सेलेक्ट्रा पे किया, उधर जाके आपने एडविया पे किया, ठीक है। तो यूजुअली वैसे हमारे टेस्ट बड़े रगड़ होते हैं, ये मैं बताऊं, खासतौर पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में अभी तक तो हम यही कर रहे थे कि जो टारगेट वैल्यू आपकी एग्जाम में होती हैं वो हमने अपने ऑटो एनालाइजर पे निकाली होती हैं, आपको कहते हैं हम माइक्रोलैब पे करके दो, तो बिकॉज वी नो दे आर वेरी रगड़ टेस्ट, उनमें कोई इतनी वेरिएशन नहीं आती, आनी भी नहीं चाहिए सुलह। दुनिया में ये बड़ा मुश्किल है कि पूरी दुनिया में एक ही इंस्ट्रूमेंट हो और एक, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एक शहर में नहीं होता तो दुनिया में कहाँ से होना है, एक मुल्क में नहीं होता, तो आपका टेस्ट को रगड़ होना चाहिए। आप जब, अब ये इंपॉर्टेंस क्या है, आप सिलेक्शन कर रहे हैं टेस्ट की, आप वो टेस्ट सेलेक्ट करें जो रगड़ हो। सर दोनों में जो सर रोबस्ट और इसमें डिफरेंस ये है कि रोबस्ट है उसमें इंस्ट्रूमेंट एक होगा और जो नहीं हाँ, उसको उसमें आप चेक करते हैं, उसमें आप उसको, यानी जैसे OPMA का कैडेट को हर तरह से रात को 2 बजे सर्दियों में नाले में कहते हैं समर सॉल्ट लगाओ, तो वो उसकी रोबस्टनेस चेक कर रहे हैं कि ये इसको कुछ होता तो नहीं इसमें, ठीक है। फिर उसको बहुत डांट डपट करके करते हैं कि गुस्सा तो नहीं आता, तो ये आप करके देखते हैं खुद, ठीक है। रगड़नेस उसके बाद PMA से क्वालिफाई कर गया है, अब उसको कभी आपने डेजर्ट में भेज दिया, कभी आपने वो स्नो में भेज दिया, कभी आपने किसी दूसरे मुल्क, वो जो हमारे ओथ में नहीं है, एनी टेरेन एनी वेदर, वो हमारी रगड़नेस है, और रोबस्टनेस है वो है जो हमारी ट्रेनिंग में हुई है, ठीक है। तो ये तो टर्म्स हैं, ये खामखा के फेचिंग ऑफ मार्क्स हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के भी आप कर सकते हैं, तो ये बेसिकली रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। अब एनालिटिकल सेंसिटिविटी, ये तो आप लोगों को मुझे बताएं, एनालिटिकल सेंसिटिविटी क्या होती है, लिखेंगे, मैं थक भी गया हूँ बोल के। What is analytical sensitivity? How do you define analytical sensitivity? क्या लिखा जी? स्मॉलेस्ट कंसेशन, हाँ एक ये डेफिनेशन है, दिस इज गुड बट हाँ ज्यादा जो है ना, हाँ बताइए। हाँ, यानी सेंसिटिविटी वो है जो, ये ऐसा टेस्ट जो माइनर चेंज हो आपकी कंसंट्रेशन में उसको भी डिटेक्ट कर ले, ठीक है। लोएस्ट भी इसमें आएगा, लोएस्ट तो जाहिर आता है,
लेकिन उसके दौरान मसलन आप ये करते हैं कि आप यूरिक एसिड लेते हैं, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। यूरिक एसिड चूंकि बड़ी वाइड हमारी वो रेंज है, तो आप उसको कहते हैं कि अगर 10 माइक्रोमोल यूरिक एसिड चेंज किया जाए तो क्या आप उसका जो टेस्ट है उसको पिक करता कि नहीं करता। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड लें यूरिक एसिड का, ठीक है, और उसमें पहले आपने 400 माइक्रोमोल डाला था, फिर आप 410 डाल दें और देखें उसकी रीडिंग कैसे आती है। तो ये सेंसिटिविटी है, यानी रिस्पॉन्स टू द चेंज। एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्स टू द चेंज, that is called analytical sense. This is the change in analytical response divided by the corresponding change in the concentration of a standard calibration curve. That is the slope of the analytical calibration curve. यानी आपने कि उसका मैथमेटिकल है, यानी एक्सप्रेस कैसे करते हैं। Analytical response expressed by the changes in the calibration curve. A method is said to be sensitive if a small change in concentration of the analyte causes a large change in the, अब large से मतलब ये है कि significant change, large नहीं कहना चाहिए वैसे, significant change in the response, ठीक है, analytical measurement। सिग्नल हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं change in concentration causing change in signal, change in signal आएगा तो फिर आपकी रीडिंग आएगी ना। तो there should be a significant change in the signal in response to the change in concentration, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन कर्व की जो ग्रेडियंट है वो उससे आप इसकी एनालिटिकल सेंसिटिविटी निकालते हैं टेस्ट की, ठीक है, कि वो उसकी स्लोप कैसी है। अब एनालिटिकल सेंसिटिविटी को आपने क्लिनिकल सेंसिटिविटी से बिल्कुल नहीं करना। अब मेथड वैलिडेशन में क्लिनिकल सेंसिटिविटी का कोई रोल है? ये बड़े सीनियरों से है, जरा सवाल सीनियर लोगों से सवाल है, कहाँ पे आप क्लिनिकल सेंसिटिविटी आखिर टेस्ट की निकाली हुई है आपने, भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो कहाँ करेंगे? अच्छा ये बताओ सुमल कि मेथड वैलिडेशन में हमने शुरू में क्या कहा था कि हम क्या चेक करेंगे इसका हम परफॉर्मेंस इन फॉर एन इंटेंडेड यूज, परफॉर्मेंस फॉर एन इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड यूज का मतलब है कि मसलन ये ग्लूकोज हम हाइपरग्लाइसीमिया में भी हमें इसका चाहिए और हाइपोग्लाइसीमिया में भी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब आप ये देखें कि ग्लूकोज टेस्ट जो है एज सच वो डायबिटीज मेलाइटस की डिटेक्शन में उसकी क्लिनिकल सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कैसी है, हाइपोग्लाइसीमिया में कहीं। तो आप ये अगर वो एक टेस्ट है, जैसे अभी रिसेंटली हमें वो प्रॉब्लम आई थी एडीएम में हमने कहा जी सीएसएफ की कंडीशन में एक चैलेंज आया था हमें कि एडीए जो है सीएसएफ की कंडीशन में इसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब ये अगर वो है ही नहीं तो आप उसको क्यों यूज शुरू करेंगे अपने। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मसलन आकर हमें बहुत शक आ रहा है एडोलेज पे ना कि मस्कुलर कंडीशन में एडोलेज की कोई प्रॉब्लम मुझे यूज नहीं लग रही, फिर क्लिनिक। तो वो कब चेक करते हैं यूज? मेथड वैलिडेशन में पहले करके नहीं, जो आप करते हैं ना एक एप्लीकेशन प्रैक्टिस्टिक। तो याद रखो, ये मैं भूल जाऊं बात बतानी कि एप्लीकेशन प्रैक्टिस्टिक्स में आप उसकी जो क्लिनिकल जो एप्लीकेशन है वो भी चेक करते हैं, विच मीन्स स्पेसिफिक सेंसिटिविटी उसकी। अगर कोई और कौन से उस बीमारी के लिए जिसके लिए आप शुरू कर रहे हैं, तो 2 बीमारियां हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लेकिन उसमें पहले आप देखेंगे इसकी रिपोर्ट लिटरेचर में स्पेसिफिक सेंसिटिविटी कितनी रिपोर्ट हुई है। तो उसके भाई रोल है, लेकिन वो शुरू में पहले एप्लीकेशन प्रैक्टिस्टिक्स में, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल पिक्चर देखो। मसलन आप सुनी सुनाई बात में ना टेस्ट शुरू कर देते हैं हम लोग, ये देखा नहीं कि इसका क्या स्पेसिफिक सेंसिटिविटी है क्या है, और उसकी किट मंगवा ली और शुरू कर दिया क्योंकि फलान लैब कर रही है। तो ये हमें खुद जज करके फिर उसके बाद बिल्कुल इनिशियल चीज है, ठीक है। अच्छा जी, एनालिटिकल स्पेसिफिसिटी क्या चीज है? ये एक्चुअली वो जो आप करते हैं ना इंटरफेरेंस, वो है
वो एनालिटिकल स्पेसिफिसिटी है। यानी जिस चीज के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप क्रिएटिनिन के लिए जेफरीज रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सी चीज सबसे बड़ी दुश्मन है उसकी? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन अगर उसमें है तो वो क्रिएटिनिन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, की स्पेसिफिसिटी खराब हो गई बिलिरुबिन के लिए, क्रिएटिनिन के लिए जेफरीज, अगर बिलिरुबिन आ गया ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब एनालिटिकल स्पेसिफिसिटी of Jeffreys for creatinine is poor in high bilirubin situations. ये clinical specificity है, ठीक है, and it is again different from clinical specificity. मिलती जुलती चीज है वैसे वो भी, ठीक है. Specify those substances which might be expected to give rise to interfering signals. Bilirubin is actually interferent है उसकी creatinine के लिए. A check for random interference should be performed by analysis of a set of representative blank samples. Indicate the extent to which the method can distinguish between the analyte of interest and मतलब एक तो तरीका ये है कि हम उसको हेमोलिसिस कर लेते हैं और हम उसको कहते हैं कि हेमोग्लोबिन की कितनी इंटरफेरेंस आ रही है किसी भी टेस्ट में. एक तरीका ये है कि आप उसका ब्लैंक लें, ठीक है, सैंपल डालें उसमें, ठीक है, और या वो आप बिलिरुबिन डालें, फिर बिलिरुबिन लें और उसको आप मेजर कर लें. जेफरीज से बिलिरुबिन मेजर करें, यानी आप उसमें सैंपल ना डालें, आप जेफरीज से बिलिरुबिन मेजर करके देखें कि जेफरीज बिलिरुबिन को कितना रिएक्ट करता है, ठीक है. ये भी एक तरीका है इंटरफेरेंस का, कि जैसे कहते हैं ना वो कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है तो वो उसका कोई स्पाई लगा दें आप उस पर, ठीक है, तो देखेंगे वो कितना रिएक्ट करता है बिलिरुबिन को. ये भी एक तरीका है, लेकिन हम वो नहीं करते, हम आपको डायरेक्टली ये देते हैं एग्जाम में. चलें ये जल्दी जल्दी कर लेंगे. व्हाट इज द इनर हिडन डीपर सीक्रेट मीनिंग ऑफ द मेथड वैलिडेशन? मेथड वैलिडेशन एक्चुअली आप किस चीज के लिए कर रहे होते हैं? ठीक है, ये क्यूएमसी वालों को याद है माशाल्लाह. मेरी बहुत पुराने एमसीक्यूज हैं. ये बहुत ही प्यारी बात है, मैं बताऊं, ये मुझे बहुत पसंद है. ये वेस्टगार्ड की है, हजरत वेस्टगार्ड रहमतुल्लाह अलैह की सेइंग है कि मेथड वैलिडेशन जो है ना, वो आपका उसका मकसद ये है कि बिल्कुल हिडन जो असेसमेंट वो है, एरर है, हिडन एरर है, वो निकाल लें. अंडर द कारपेट ना करें चीज को, आप उसको अच्छी तरह से गंगालें, अपने मेथड को अच्छी तरह से गंगालें कि हर तरह से ये ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है, इसलिए इसको ये कहते हैं. अच्छा, तो मेथड वैलिडेशन इज अबाउट एरर असेसमेंट, दैट इज द सीक्रेट. estimating error in a result produced by a method to be sure that amount of error won't affect the interpretation of the result and compromise patient. यानी एरर तो होगी, ये तो मैं बताऊं, एरर तो होगी, एरर का डर है, एरर तो होगी, ठीक है. तो ये किसका शेर है? शेर तो अरसा ही हो गया. अरसा क्या मतलब, नई नस्ल को कोई करीब से भी नहीं है. ये एक शायर होते थे, बड़े मजेदार शायर थे, बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन थे. उनका नाम था जॉन एलिया. ये कराची के रहने वाले थे. वो इस तरह की शायरी करते थे. कहा शेर का डर है, कहा शेर तो होगा. तो कहा एरर का डर है तो एरर तो होगी जरूर. अब ये देखते हैं कि एरर विद इन लिमिट्स है कि नहीं, ठीक है. एरर जो है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी पेशेंट रिजल्ट को, तो ये इसका मकसद है. If errors are so large, they can cause an incorrect interpretation of the results. To be acceptable, the observed error need to be small relative to the changes that can cause a change in the interpretation. अब इसी से error की quantity से जो concept आया वो total allowable error, TAE, total allowable error. या TE और आगे small a लिखा होता है subscript में, capital T, capital E और सबस्क्रिप्ट में ए, टोटल अलाउबल एरर. टोटल अलाउबल एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और वो आपको क्लाया एक वो है
एक लॉ है यूनाइटेड स्टेट्स में, एक लॉ पास हुआ था, उसका नाम है एक्ट है, एक्ट ऑफ कांग्रेस है उनका। वो उसकी एक लिस्ट है, वो आप सबके पास होनी चाहिए। मैंने सीनियर स्टूडेंट्स को तो दी हुई है, आप सब लोग अपने पास रखें। वो बहुत आपके लिए करामद है। टोटल लायबल एरर्स, हर एनालाइट के लिए, हर टेस्ट के लिए परसेंटेज दी हुई है कि इतने % एरर उसमें अलाउड है। पता क्या होता है, आपके पास मुकदमे आते हैं, हमारे पास आते हैं इधर, हर एक ने तो वेस्टगार्ड रूल्स नहीं पढ़े हुए ना, मेथड वैलिडेशन बाकियों ने नहीं पढ़े हुए। आपके पैथोलॉजी के बॉस आपको कहेंगे कि यार इसने ग्लूकोज आपसे कराया तो वो 110 आ गया, उसने जाके दूसरी लैब से कराया तो 115 आ गया, तो ये तो 15-5 का तो बड़ा डिफरेंस है यार, ये तो मरवा रहे हो तुम मरीजों को। तो अब 5 का अब डिफरेंस आप कहेंगे नहीं सर कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपकी बात नहीं वो मानेगा, आपका बॉस चाहे वो पैथोलॉजिस्ट है, वो कहेगा नहीं नहीं यार चले 7 का 8 का डिफरेंस, नहीं नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा है। अब आपकी लड़ाई का फैसला कैसे होगा, उस चार्ट से होगा। आप जाएं उसका कहें सर ये अमेरिका है जहाँ पे अच्छी लेबोरेटरी चलाना लॉ है, वहाँ खराब लेबोरेटरी चलाने वाले को कैद हो जाती है। अगर आप लेबोरेटरी ठीक नहीं चला रहे तो आपको लेबोरेटरी बंद कर दी जाएगी और आपको आप पे मुकदमा बनेगा। ये वो मुल्क है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर लॉ अच्छी लेबोरेटरी चलानी है। उन्होंने ये परसेंटेजेस दी हुई है, ठीक है। ये हमने किया है ये काम, और हमें बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सेव किया बड़ी सिचुएशन में, कि आप उसको बताएं कि 10% ग्लूकोज में अलाउड है। अगर पेशेंट का रिजल्ट 150 है, अगर रिजल्ट 150 है तो उसका 10% वो कितना होगा 15, यानी 15 की एरर, यानी 135 से लेकर से 165 तक, इट्स ओके। इतना बड़ा दुनिया का जो इदारा है वो इसको अलाउ कर रहा है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आप एंजाइम में देखें तो उसकी बहुत 30% 25% तक अलाउड है, ठीक है। क्रेटिनिन में बहुत अलाउड है, बिलिरुबिन में अलाउड है, ग्लूकोज में 10% है। तो ये टोटल एरर है, इसमें रैंडम एरर भी शामिल होती है और सिस्टमैटिक एरर, दोनों को मिला के ये एरर होती है। वो चार्ट आप जरूर लें, मेरे से ले लें, किसी आप खुद डाउनलोड कर लें, दैट इज टोटल लायबल एरर चार्ट। वो उसमें मजे की बात है, आप अपने मोटाली वाले को भी दें, बहुत सारे पैरामीटर मोटालॉजी के हैं, ठीक है, केमिकल के हैं, सीरोलॉजी के हैं, हेमाटोलॉजी के हैं, तो वो पूरी लैब के लिए यूजफुल है। यू मस्ट हैव दैट, यानी हम शायद हमारे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कम से कम उसको तो हम फॉलो करें ना। ओके जी, बस ये मेरा ख्याल है, ये मैं एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं करूंगा, ये इसका क्योंकि आप लोगों ने किए हुए हैं पहले, और मैं भी दूंगा, आप खुद कर लेना। तो ये लास्ट है बस। एन एरर हुज डायरेक्शन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हुज डायरेक्शन एंड एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, which kind of error it is, random error, ठीक है ना। ये तुम्हें आता है आपको माशाल्लाह। बस ये बता दूं कि रैंडम एरर बगावत है, मैं अक्सर कहा करता हूँ रैंडम एरर बगावत है। बगावत ये है कि उसका कोई पता नहीं, वो दिन में आ जाए, रात में आ जाए, किसी वक्त भी आ जाए। यानी रैंडम एरर जो है ना वो आपके ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ये तो कंट्रोल की रैंडम एरर है ना, ये तो वो है जो आपने क्वालिटी कंट्रोल में लगाया और वो रैंडम एरर है, ठीक है। लेकिन पेशेंट की रैंडम एरर एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। उस दिन मैं आप लोगों को कह रहा था कि रोज सुबह लेबोरेटरी में आने से पहले 2 नफल पढ़ा करें और अपनी लेबोरेटरी के लिए दुआ मांगा करें कि इसमें रैंडम एरर ना आए। पेशेंट केयर वो बहुत खतरनाक होती है, किसी तरीके से वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। कभी वो उसमें सक नहीं किया सैंपल, ट्यूब में मसला आ गया, बबल आ गया, रीजन में गड़बड़ होगी, तो वो बहुत वो उससे अल्लाह मियां बचाए बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बस इस पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। वंस अगेन ये बड़ा बेसिक सा था जी। कोई क्वेश्चन किसी का? ओके जी, खुदा हाफिज़, अल्लाह ब्लेस यू।